Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So one news is drawing attention of lot many people, and a repeated request is coming. Sir, make a video on this aspect and what is the impact of this on public sector banks. Big business houses to own banks. This is the headlines. And this headline is outcome of a internal working group of RBI report. In that, this internal working group suggested that well-run NBFCs with asset size of 50,000 crore and 10 years of successful running of NBFC may be permitted to convert these companies into bank. And it is further suggested that the minimum capital requirement may be enhanced to 1,000 crore instead of 500 crore right now. What are the implications of this? Whether internal working group suggestions are bound on RBI, or RBI may accept it, or it will going to affect the public sector banks or other banks those are already operating in the market. These are the questions that is haunting the minds of many employees of these banks. And even there is some news is running that some of the banks may be taken over by some private entities. So what are the implications of all these things? First thing is whether internal working group suggestions are binding. Answer is no. They have only suggested. Why they have suggested? Because now large NBFCs are passing through a phase where they are unable to raise desired resources from the market due to some events that has happened in preceding years. And they are looking for alternatives. So converting into bank allows them to have current account and saving account and hence access to cheap CASA funds. But what type of these NBFCs are there at present? We will hardly find a handful of these. We can count on fingers. These are like Bajaj Finance, L&T Finance and Mahindra Finance. Whether these promoters may like to convert their NBFC where they have strong grip into a bank. The moment it is converted into bank, the public shareholding has to come there and gradually even the hold of promoter may be diluted. So will they be interested? It is $1 million question. If we go by the past experience, when liberalization came in 1991, few NBFC got the license to become banks. Like 20th Century Finance Company was converted into Centurion Bank. Similarly, there are one or two more cases where these were converted into banks, but ultimately those banks could not run the function successfully and they were merged into some of the existing banks. Post 1991, number of private sector banks were started, but very few could survive. They were ultimately merged into public sector bank or private sector bank. What type of bank survived? Like Axis Bank, SDFC Bank, ICICI Bank, but these were having backing of some organization which was already public sector. ICICI was a shoot of Reserve Bank of India. SDFC was already created with a protection from Reserve Bank of India. Axis Bank was shoot of UTI. So if we see the history in India,
a new generation private sector banks, it is very, very difficult to survive because people don't trust these banks, and ultimately they have very short life and they get merged into some public sector bank. So keeping in view very bad experience of such private sector banks, it will be very difficult task before Reserve Bank of India to take such a risk at a time when economy is already under very, very bad conditions and country has not come out of COVID situation. Now you must have even heard there are some comments of former governor and deputy governor also suggesting that this will be disastrous. So keeping in view the concerns raised by certain section of people and non-clarity, it is not good for candidates to waste their energies on such news. My advice to each one of you, those are aspiring for bank jobs, concentrate on study. Don't be bogged down by such news. Many such news will come. Only thing we will consider such news is when some government guidelines come on that. This is my take and I wanted to make this video only to satisfy your anxiety. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिग बिजनेस हाउसेस अब बैंक ओन करेंगे और इसमें दो तरह की न्यूज आ रही है। एक वो आ रही है कि जो एनबीएफसी कन्वर्ट हो सकते हैं और दूसरी आ रही है कि कुछ सरकारी बैंक शायद प्राइवेट लोग ले लें। जो सेकंड न्यूज है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर कोई न्यूज नहीं है तो हम उस पर कोई विचार नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी उसमें ऑफिशियल न्यूज नहीं है। जहां तक पहला पार्ट ऑफ न्यूज है उसमें एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप है आरबीआई का जिसने अपनी रिकमेंडेशन दी है और आरबीआई की वेबसाइट पे डाली है। उसने ये कहा है कि जो भी एनबीएफसीज हैं जिनका एसेट साइज 50,000 करोड़ है और 10 साल से सक्सेसफुली रन हो रही है, वो चाहें तो अपने को बैंक में कन्वर्ट कर सके, ऐसा आरबीआई को अलाउ कर देना चाहिए। इट इज ए सजेशन और इस सजेशन पे पब्लिक से 15 जनवरी तक व्यूज मांगे गए हैं और साथ ही साथ ये कहा गया है ऐसे बैंकों की कम से कम कैपिटल 1000 करोड़ होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसी एनबीएफसीज हैं? अगर हम देखें तो इनको हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में केवल बजाज फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस और M&M फाइनेंस ही 3 कंपनी नजर आती हैं जो इन दोनों कंडीशंस को पूरा कर पाएंगी। तो अगर ऐसी कंपनियां कम हैं और आज जो इनके प्रमोटर्स हैं उनकी बड़ी पक्की ग्रिप है इन कंपनीज के ऊपर, तो वो क्या बैंक बनाकर अपनी ग्रिप को घटाना चाहेंगे? क्योंकि अगर बैंक में कन्वर्ट होगा तो धीरे धीरे जो इक्विटी है प्रमोटर्स की डाइल्यूट करनी पड़ेगी और पब्लिक इक्विटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा संभावना है कि कोई प्रमोटर सामने ही ना आए कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरा, अगर ऐसा वो करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि आज जो एनबीएफसीज हैं उनको फंड्स रेज करने में दिक्कत आ रही है, मगर बैंक कन्वर्ट होने के बाद वो करंट अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, कासा डिपॉजिट्स आ सकते हैं, तो वो एक अट्रैक्शन हो सकता है उस तरफ जाने के लिए। पर अगर हम हिस्टोरिकली जाते हैं तो क्या प्राइवेट बैंक भारत में सक्सेसफुल रहे हैं? 1991 में जब लिबरलाइजेशन आई तो इसी तरह की गाइडलाइंस उस समय भी जारी की गई। 20th सेंचुरी फाइनेंस एक कंपनी थी जिसने सेंचुरियन बैंक बनाया। ऐसे ही 1-2 और फाइनेंस कंपनी थे जिन्होंने अपने आप को बैंक पे कन्वर्ट किया, पर वो ज्यादा टाइम तक बैंक नहीं चल पाए और अल्टीमेटली वो बड़े बैंकों में मर्ज हो गए। इसी प्रकार से यदि हम देखें प्राइवेट सेक्टर में कौन से बैंक सरवाइव किए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तो ये कौन से बैंक है? इनकी आईडीबीआई बैंक, इनकी ओरिजिनेशन कहां से है? इनकी ओरिजिनेशन किसी न किसी पब्लिक सेक्टर से ही है या आरबीआई की शूट से है।
पर जो इंडिपेंडेंटली प्राइवेट सेक्टर बैंक आए नए एक्सपेरिमेंट में, उनमें से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। बहुत ही रेयर केसेस हैं। यस बैंक का अभी आपके सामने आ गया, वो कुछ साल तक चला, उसके बाद उसकी क्या हालत हुई। इसी प्रकार अभी एक दो बैंक ऐसे हैं जो चल रहे हैं, पर रोज उनकी खबरें आ जाती हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जिन बैंकों की, जिन एनबीएफसीज की अच्छी पकड़ है, वो क्या अपने को बैंक में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। सिमिलरली पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए क्या आरबीआई ऐसा रिस्क लेगा कि ऐसे बैंक बनाने की अनुमति दे? और अगर आप देखें कि आज भी कुछ ऐसी वॉइसेस उठी हैं, जो फॉर्मर गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने आगाह किया है कि ये देश के लिए हो सकता है अच्छा ना हो। इसी तरीके से यदि हम देखें तो अभी भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है कोविड की वजह से काफ़ी सीरियस लेवल पर है। तो ऐसे के अंदर नए एक्सपेरिमेंट करना, जो चली चलाई एनबीएफसी है उनको ऐसे रास्ते पे मोड़ देना जहां से उनकी वापसी ना हो, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन होगा और आरबीआई को बड़े धैर्य से दिमाग लगा के इस पे सोचना होगा। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेरी सलाह ये है कि जब तक इस तरह की खबरें आ रही हैं और उस पर कोई डिसीजन नहीं हो रहा, इन पे अपना वक्त ना जाया करें। अब जरा सी न्यूज़ आती है, लोग परेशान हो जाते हैं कि जी इसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, और ये सोच के वो परेशान होने लगते हैं। मेरी सलाह ये है कि ये डिसीजन ऐसे नहीं है जो बड़ी आसानी से लिए जा सकेंगे। थ्योरी में, न्यूज़ में आने के लिए ये बहुत आसान प्रश्न है, पर जब इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर उस पर डिसीजन लेने का वक्त आएगा तो ये थोड़े से कठिन विषय हैं। इसलिए जब तक कुछ सरकार की तरफ से घोषणा ना हो, हमें इस तरह के विषयों पर विचार करके, टाइम लगा के अपनी एनर्जीज नहीं वेस्ट करनी चाहिए। अगर हम नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज की जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखकर हमें नौकरी तलाशनी चाहिए। कल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, पर जो भी होगा नेचुरल है गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ कर ही उस विषय पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी की, कंट्री की। अगर इस पर कोई भी गलत स्टेप गवर्नमेंट ले लेती है तो वो बहुत मुश्किल कर सकती है पूरी इकोनॉमी के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा डिसीजन इतनी जल्दबाजी में आ जाएगा कि जो बाद में मुश्किल करे लोगों के लिए। बाकी क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर कुछ भी हो सकता है, तो वो तो नेचुरल है, कुछ तो हो ही सकता है, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें हिस्ट्री सिखाती है, तो उसको भी जरूर हर गवर्नमेंट ध्यान में रखती है। तो इस विषय पे मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी सब कुछ ये एक एक्सपेरिमेंट, मतलब बहुत एलिमेंट्री स्टेज पे है, क्योंकि बहुत दुनिया भर की सजेशनें आती हैं, सारी इम्प्लीमेंट नहीं करती आरबीआई। जो पैनल्स होते हैं वो अपने विचार रखते हैं, मगर पैनल का विचार आने का अर्थ ये नहीं होता कि वो डिसीजन में कन्वर्ट हो गया। आरबीआई के पास बहुत ऐसे पैनल्स होते हैं, बहुत ऐसे विषय होते हैं जिनको वो विचार करके नकार भी देता है। तो जब इस विषय पे कोई आरबीआई का डिसीजन आएगा तभी हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप लोगों के अंदर बहुत जिज्ञासा थी, आप बार बार मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस विषय पे आप कुछ ना कुछ बताइए, तो जो मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।